اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہے، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، حق اور سچ کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت پڑوس ملک افغانستان میں طالبان کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ طالبان نے جامعات، یونیورسٹی میں خواتین پر پابندی لگا دی ہے اور پوری عالمی برادری، انٹرنیشنل لیول پر طالبان کی مذمت کی جا رہی ہے اور طالبان پر پریشر اور دباؤ کی بات کی جا رہی ہے، لیکن خبر آ رہی ہے کہ طالبان نے صاف طور سے کہہ دیا کہ پوری دنیا مل کر ہم پر ایٹم بم بھی گرا دیں، حملہ بھی کر دیں، تو خواتین سے متعلق فیصلے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عالمی برادری کی جانب سے عائد پابندیوں کے لیے تیار ہیں۔ طالبان کا موقف انتہائی سخت سامنے آیا ہے۔ طالبان کے ہائر ایجوکیشن، اعلیٰ تعلیم کے وزیر نے اتوار کے روز کہا ہے کہ اگر وہ ہم پر ایٹم بم گراتے ہیں تو ہم خواتین کے لیے یونیورسٹی کی تعلیم کو روکنے کے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کی جانب سے تمام پابندیوں کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ العربیہ.net کے مطابق یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے اہلکار نے اتوار کو افغانستان میں خواتین کو مقامی اور بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں میں کام کرنے سے روکنے کے طالبان کے فیصلے کی مذمت کی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ طالبان کی جانب سے تمام غیر سرکاری تنظیموں کو حکم دے دیا گیا کہ وہ اپنی خواتین ملازمین کو کام کرنے سے روک دے۔ سیو دی چلڈرن، نارویجین ریفیوجی کونسل اور کیئر کی طرف سے جاری مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ طالبان کے اعلان کی وضاحت تک ہم اپنے پروگرام معطل کر دیں گے۔ ہم افغانستان سے مردوں اور خواتین کے لیے یکساں طور پر اپنی جان بچانے والی امداد فراہم کرنے کو کہتے رہیں گے۔ ہفتے کے روز طالبان نے افغانستان میں غیر سرکاری تنظیموں کو احکامات جاری کیے تھے کہ وہ خواتین کو ملازمت دینے سے روک دیں، تاہم طالبان نے غیر ملکی خواتین کارکن کے حوالے سے اپنی ہدایت کی وضاحت نہیں کی تھی۔ ناظرین، امریکہ کے موسم کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ امریکہ میں اس وقت برفانی طوفان قیامت برپا کر رہا ہے، مرنے والوں کی تعداد 31 کے قریب ہو گئی ہے۔ امریکہ میں موسم سرما کا بدترین برفانی طوفان جاری ہے۔
बम साइक्लोन ने क्रिसमस पर निज़ाम ज़िंदगी जमा दिया। खून जमाती हवाओं और बर्फबारी से मुख्तलिफ हादसात में अब तक 31 लोगों के मरने की खबरें आ रही है। अमेरिका भर में 2 लाख से ज़्यादा सारिफीन अब तक बिजली से महरूम हैं, जबकि 10,000 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख और हज़ारों परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हैं। दूसरी जानिब एटलांटा, शिकागो और न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में हज़ारों मुसाफिर हवाई अड्डों पर फंस गए हैं। अमरीकी रियासत मोंटाना में दर्जा हरारत -45 डिग्री तक गिर गया। रियासत मिशिगन के साहिल पर बर्फ ही बर्फ, पार्क में लगे झूले बर्फ के मुजस्समों में ढल गए। न्यूयॉर्क के शहर बफेलो में 4 फीट तक बर्फ पड़ी। पीर की सुबह तक मजीद 2 फीट बर्फ पड़ने का इम्कान है। मौसम की शिद्दत मंगल तक मामूल पर आने की उम्मीद है। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है रूस और यूक्रेन को लेकर। जी हाँ, रूस यूक्रेन के तनाज़े पर बातचीत को, मुज़ाकरात को तैयार है। सरकारी टेलीविज़न पर पुतिन का यानी रूस के प्रेसिडेंट का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि मगरिब, पूरा वेस्टर्न कंट्रीज ये रूस की तबाही का मंसूबा बना रही है और उसी ने ये तबाही लाई है। लेकिन एक ख़ास बात है इसमें कि एक वक्त ऐसा था कि रूस किसी हाल में यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को गिनने को तैयार नहीं था और थमने, जंग और रोकने को तैयार नहीं था। और अब रूस यूक्रेन के तनाज़े पर मुज़ाकरात को, बातचीत को तैयार है, मगर ज़ेलेंस्की अब भाव नहीं दे रहे हैं। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि क्रिसमस के प्रोग्राम्स, क्रिसमस की तकरीबात के मौके पर पोप फ्रांसिस का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया अमन के लिए तरस रही है। रूस और यूक्रेन जंग खत्म करे, यानी दुनिया अमन के लिए तरस रही है। पोप फ्रांसिस ने अपील की है रशिया से भी और यूक्रेन से भी कि जंग खत्म करें, क्योंकि जंग मसाइल का, समस्याओं का, प्रॉब्लम्स का हल नहीं है। आइए दिन ईरान से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता 2 दिन पहले यानी इतवार को ईरान से ये इत्तला मिली है कि सुप्रीम लीडर ईरान अली खामेनेई की ज़ेरे हिरासत भांजी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। खामेनेई के एक भांजे और गिरफ्तार खातून के भाई महमूद मुराद खानी ने ट्विटर पर एक ट्वीट में लिखा है कि उनकी बहन कैद की जगह के हालात और उसे एफएन जेल मुंतकिल न करने के खिलाफ भूख हड़ताल पर है। फरीदा मुराद खानी के वकील मोहम्मद हुसैन ने जुमा को दिसंबर को एक ट्वीट में ऐलान किया था कि उनकी मुवक्किला पर उलमा के लिए खुसूसी अदालत में मुकदमा चलाया गया और उसे 15 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। समाजी कारकुन फरीदा मुराद खानी सुप्रीम लीडर की हमशीरा बदरिया हुसैनी खामेनेई की बेटी है। इनके वालिद ईरानी हुकूमत के साबिक रहनुमा अली मुराद खानी को तकरीबन 1 महीने पहले गिरफ्तार किया गया था, जबकि गुज़िश्ता सितंबर महीने में अखलाकी पुलिस के हाथों महसा अमीनी की मौत के बाद हुकूमत के खिलाफ उठने वाली एहतजाज की लहर में फरीदा भी पेश रही हैं। फरीदा मुराद खानी ने गैर मुल्की हुकूमतों से मुतालबा किया था कि वह हुक्काम के पुरतशद्दुद क्रैकडाउन की वजह से तेहरान के साथ अपने तमाम ताल्लुकात को मुनक़ता कर ले, ताकि नौजवान खातून महसा अमीनी की पुलिस की हिरासत में मौत के बाद होने वाले बड़े पैमाने पर एहतजाज को रोका जा सके। इसलिए माना जा रहा है कि ईरानी हुकूमत मुजाहरे करने वाले और मुजाहिरीन का सपोर्ट करने वाले हर शख्स को जेल के सलाखों में ठूंस रही है और कुछ लोगों को तो फांसी के फंदे पर भी चढ़ा दिया गया है। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है कि हिज़्बुल्लाह ने अक़वाम मुत्तहिदा UNO के अमन फौजी के मुश्तबा कातिल को हुक्काम के हवाले कर दिया। लबनान की ताकतवर शिया मलेशिया हिज़्बुल्लाह ने इस माह के अवाइल में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में शामिल एक आयरिश फौजी के कत्ल में मुलव्वस होने के शुबा में मुश्तबा शख्स को हुक्काम के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि 23 साल का आयरिश फौजी शान रोनी
14 दिसंबर को लेबनान में अक़वाम मुत्तहदा की अबूरी फोर्स यूनिफिल की गाड़ी पर मुल्क के जुनूब में वाक़ गांव अल आक़िबिया के करीब हमले में हलाक हो गया। ये इलाका ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप हिजबुल्लाह का मजबूत गढ़ समझा जाता है। इस हमले में 3 और फौजी जख्मी हुए थे। यूनिफिल लेबनान और इजराइल के दरमियान बफर फोर्स के तौर पर काम करती है और इजरायली सरहद के नज़दीक तैनात है। एक सिक्योरिटी एहलकार ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि हिजबुल्लाह ने इतवार को मरकजी हमला आवर को हवाले कर दिया है और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसे बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।